कैसा रहा आपका पहला लेक्चर? All righty, all righty. A very warm welcome to all of you in the first English class that you have. My name is Anurag and I'll be your language trainer for the rest of the session. आपके साथ साथ I'll be helping you to navigate through your course and build on your communication skills. Alongside I'll be a student also. आपके साथ साथ मैं भी सीखूंगा language के nuances को. तो both of us, you and me would learn this together. आपको कोई doubt आता है तो feel free to ask me. I'll hope कि आप लोग reasonable relevant doubts पूछेंगे, but if anything comes out to you, हम class में उसको address ना कर पाएँ तो you can ask outside. But that'll be the long and short of it. Please आपस में discuss ना करें, मुझसे पूछ लें दोस्त अगर कुछ है ना? Anyway, so I'll start off by telling you about communication. Before that, let's have a quick activity जहाँ पे I would want to know your names because हम लोग acquainted नहीं हैं. This is my first session. हो सकता है मुझे थोड़ी difficulty हो. Over the course of time, I'll be able to learn your names. हाँ, all of you are comfortable with English ना? हम थोड़ा English हिंदी बोल सकते हैं दोनों? अच्छा, ठीक है, फाइन. सो अभी हमारा क्योंकि कोर्स स्टार्ट हो रहा है, सेशन स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट क्लास है हमारी. मैं आप चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा जान लूँ. तो आई वॉन्ट टू क्विकली डू अ क्विक एक्टिविटी जहाँ पे आप लोग अपना नाम बताएं. You'll tell about which school you're in and you also tell about a hobby or a couple of hobbies, whatever you want to mention. आपकी जो hobbies हैं, ठीक है? Simple है. I'll start off with mine. My name is Anurag. I am not in a school anymore. My hobbies include playing cricket. I enjoy watching a lot of movies. I enjoy listening to music. I enjoy traveling as well. तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ I'll pass on the baton to you. अब आपकी बारी है ना? So who's going to volunteer? कौन start करना चाहता है? Yes, please, come on, yes. बेटे बच्चा जो आपको बोलना है बोलो. इंग्लिश हिंदी, आई प्रेफर कि आप इंग्लिश में बोलो क्योंकि इंग्लिश क्लास है. बट अगर आप कहीं अटक जाओ तो आप हिंदी में बोलो, फिर वापस जितनी जल्दी हो सके इंग्लिश पे रिवर्ट बैक कर जाओ. 1 सेकेंड यू हैव टू बी लाउड इनफ. थोड़ा सा तेज बोलने की कोशिश करना ताकि सब सुन पाए. यस सर. ओके. ओके. Badminton and music, is it? Nice. I also enjoy playing badminton. Wonderful. Have a seat, please, Shubham. Can we all clap for Shubham, please? Keep it low, keep it low. Remember, there's another class going on, but aim appreciate करना है तो थोड़ा सा कम. But anyway, moving on. Who's going to start off next? अब आप लोग नहीं करेंगे तो मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा. Take 30 seconds to gather your thoughts. आप अपनी thoughts gather कर लो. 30 seconds बाद फिर मैं randomly शुरू करूँगा कहीं से भी, ठीक है? Ready? Okay. 30 seconds begins now. We can start from you, but just take 30 seconds. आवाज नहीं बच्चे. This is for you to No. Okay, I'll begin randomly then. We'll start from here. Yes, sir. Yes, please. Good afternoon, sir. My name is Arithro Das. I study in St. Francis School, Liverpool. My hobbies are to listening to music, traveling, and playing badminton more often. Okay. What's your name again? Arithro Das. Arithro Das. बहुत unique name है sir आपका. Thank you. Can we all clap for Arithro, please? Wonderful. Next. Yes. Yes, sir. Okay. Playing tennis and reading books. Which all books have you read, sir? कौन सी books पढ़ी हैं अभी तक? Harry Potter have read. Okay, nice. Good novel. आप में जिन लोगों को reading का शौक है, keep doing that. It's a very good hobby. जिनको नहीं है, start off. अगर किसी चीज़ से start कर सकते हो तो करो. It's a very good habit. Yes, ma'am. No more. एक सेकेंड सर, आवाज़ नहीं आएगी बस. अगर आपकी आवाज़ आई तो मैं आपको अलग बैठा सकता हूँ, ध्यान रखिए इस बात को. सो नो मोर डिस्कशन. जो भी आपका डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं, आस्क फ्रॉम मी. पेन मिलेगा सर? मुझसे पूछिए, बट नो मोर डिस्कशन. यस मैम. ओके. लिसनिंग टू म्यूजिक. वंडरफुल. व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक मैम? हाँ, नॉर्मल म्यूजिक नहीं, उसमें कोई स्पेशल सिंगर है या जॉनर है जो आपको पसंद है सुनना? नहीं, जनरल म्यूजिक. ओके. यस सर. ओके. My hobbies are kind of listening to music, Punjabi, and playing badminton.
ओके ठीक है, ये सब बैडमिंटन ही खेलते हैं आप लोग, साथ में ही खेलते हैं सब मिलके? 4 बच्चों ने अभी तक बैडमिंटन बोल दिया है. ओके नाइस, प्लीज हैव अ सीट. हैव अ सीट. कैन यू क्लैप फॉर हिम प्लीज? यस सर. नेक्स्ट. यस सर, कम ऑन. Sir, my name is Keshav Agarwal. I study in an international school and my hobby is creating and also I use computers. You also use Computers are also it's kind of my hobby. computation. Yes, computers. Okay, you enjoy spending time with computers, playing with them. Okay, nice, very nice. Okay, what's the name again? Keshav Agarwal. केशव. ओके यस, कैन वी ऑल क्लैप फॉर केशव प्लीज? यस सर. अब बाय डिफॉल्ट आप चलते रहिए, ठीक है? यस सर. कहाँ खोए हुए हैं आप? ओ यू वांट बी एबल टू स्पीक? ओके नो वरीज, प्लीज हैव अ सीट. यस सर. Play cricket and read books, Utkarsh. Okay, nice. I also enjoy playing cricket. Can we all clap for Utkarsh, please? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, yeah. आप खड़े हो गए, सही किया. Listening to music and hanging out with my friends. ठीक है. Okay, nice. Yes. Oh, we didn't clap. Come on. अब by default कर लो यार. हाँ. My name is Ishansi and I'm from the computer school Patna. Okay. And my hobbies are playing 3D, 5 Valorant, computer games. Playing 3D, 5 Valorant. 3D and computer games. Ah, nice. Okay, nice. Have a seat, please. Can we all clap for him, please? Wonderful. Okay. Hobbies are? Arm wrestling. Okay. How many? Anyone else who likes to arm wrestle? Okay. Nice. कोई ऐसा है जो दोनों हाथों से? खैर मैं करता हूँ, लेकिन मैं दोनों हाथों से करता हूँ रसल. ऐसा कोई ऐसा है? नहीं. ओके ठीक है. हैव अ सीट. वंश. ओके, कैन वी क्लैप फॉर वंश प्लीज? यस मैम. ओके. रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग म्यूजिक. सबकी लिसनिंग म्यूजिक एंड रीडिंग बुक्स हो रही है बच्चे, कुछ कुछ सब है ना, सेम हो रहा है. बट एनीवेज नाइस. हैव अ सीट प्लीज. कहाँ यार आप लोग खुद ही. यस मैम. थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा बच्चे. आई स्टिल couldn't gather your name. Shantini. Shankini. Could you spell it please? SHAK? KH? I'm so sorry, I have to. Okay, SHANKHITI. Shankiki. Is that it? Oh, very interesting and unique name. बहुत different है. What does it mean? बच्चे मुझे आपके पास आना पड़ेगा, बताइए. Standings. Statics. Okay. Nice. बहुत unique है. Nice. Okay. Can we all clap for Shankiki and a unique name? Yes, ma'am. Travel. Okay. Nice. Fine. बैठिए. Yes. बच्चे बात नहीं. Yes. Okay. Okay. Reading poetry. Oh, nice. Okay. Traveling. Nice. Okay. Please have a seat. Can we all clap for her? Yes. Okay. Football you play? Oh, nice. Very nice. Come on. Yes, sir. आपका हो गया ना? हाँ, या. Okay. Programming. Wow. Such superstar kids we have. Nice. Can we clap for him, please? Yes. अच्छा हो गया. Yes, sir. ma'am. ओके देखो, जिस लोगों का अभी कुछ हॉबीज नहीं है, दिस इज नॉट फॉर पीपल जिन लोगों ने अभी तक बोला है, दिस इज मेंट फॉर जनरली फॉर ऑल द पीपल. आप लोगों का अगर कोई हॉबी नहीं है अभी, या आप भी फाइंड अ हार्ड टाइम टेलिंग कि यार क्या हॉबी बताऊं मैं, देन यू नीड टू लुक आउट फॉर हॉबीज. आप और एक्सप्लोर करो अभी, है ना. लुक आउट फॉर हॉबीज, लुक आउट फॉर थिंग्स जो आपको पसंद आए. मे बी रीडिंग है, मे बी ट्रैवल करना पसंद हो, मे बी सम कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे किसी ने बोला, बट यू नीड टू एक्सप्लोर मोर. आप लोग चीज़ें देखिए और उनको
फिर आपको पता चलेगा आपको क्या चीज़ पसंद है करना. हॉबी इज समथिंग दैट यू डू इन योर फ्री टाइम. आप जो अपने फ्री टाइम में, लेजर टाइम में करते हैं, वो हॉबी होता है. पहले बेंच पे बात करना यार बड़ी हिम्मत का लगता है मुझे काम. वैसे आई गिव इट टू यू फॉर दैट. हाँ, सोना व्हाट? स्लीपिंग हॉबी है. हॉबी में नहीं आ सकता है स्लीपिंग, क्योंकि लेजर टाइम में, फ्री टाइम में आप अपने करते हैं और वो एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है. तो स्लीपिंग वॉन्ट बी काउंटेड एज हॉबी, बट एनीवे यस यस यस. ओके. ओह, nice, nice. Quite a lot of. How many of you people like to watch animes and mangas? Oh, quite a lot of fans here. Wonderful. Please have a seat, ma'am. Yes, can we all clap for her, please? Yes, yes, sir. हाँ, बोलिए बोलिए. बच्चे, आवाज आ रही है मुझे बहुत. Wonderful. Please have a seat. Okay. Hobby and table tennis and बैडमिंटन. बैडमिंटन तो मैं आप लोगों को सबके घर आके चेक करने वाला हूँ. अगर किसी के नहीं निकला, क्योंकि लगभग सबने बोला है बैडमिंटन. एकेडमिक्स का पार्ट है. अच्छा, आप गए थे. ठीक है ठीक है. नहीं नहीं. यस, यूर ऑलवेज वर्किंग आउट. Oh, nice. Okay. Tarandeep is the name? Amandeep. Namandeep. Okay. I'm sorry, I'm high of hearing, तो आप लोग को जो भी बोलना है थोड़ा तेज बोलिए, so that I'm able to hear. Okay. Thank you. Yes, sir. बोलिए बोलिए फटाफट से. सत्येंद्र. यार मुझे कुछ का कुछ क्यों सुन रहे? बोल कुछ रहे लोग, मुझे कुछ सुनना. Anyway. Okay. वॉलीबॉल एंड क्रिकेट. नाइस. यस सर. मैं एक साथ आपके लिए क्लैप करा दूंगा. आई जस्ट हैव अ लिटिल लेस टाइम, सो या. नाइस. ओके. प्लेइंग वॉलीबॉल एंड वॉचिंग एनिमेस, इज इट? ओके, नाइस. यस. ओके. प्लेइंग क्रिकेट. ओह, नाइस नाइस. यस सर. नई आवाज नहीं आई, थोड़ा तेज बोलो. ओह, आई मिस दिस रो. आई एम सो सॉरी. यस प्लीज, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं सर. गिव मी अ मिनट. यस. ओके. ओके, नाइस, वंडरफुल. यस. ओके. यस सर. Psychological movies, is it? Psycho thriller. Which all TV shows and movies have you watched? Stranger Things थोड़ी psycho thriller है यार. अच्छा, इस sci-fi है. Okay, psycho thriller कौन सा देखा है? Oh, Jeffrey Dahmer, I believe is 16 plus, and you are not 16 plus. Okay, never mind. No worries. Just a little too much for a kid. But anyway, okay. देखो बच्चे, I have little less time, so what I'll do is half of the kids will have introduction today, and next class में बाकी आप मुझे बताना. अभी के लिए I'm just stopping here. One more thing, एक important factor what I wanted to tell you is कि introduction या जब भी आप अपने बारे में किसी को बताएं, which becomes a very important thing going ahead. आप जब भी कहीं आगे किसी इंटरव्यू में जाएंगे, आप किसी स्कूल में जाएंगे, आप किसी नई क्लास में जाएंगे, कहीं anywhere you go, you'll be expected to introduce yourself. आपको अपने बारे में बताना होगा और आना भी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं है किसी दूसरे को वो आप दूसरे लोग आपसे करवाएंगे इसलिए आपको आना चाहिए. इट्स फॉर यू टू नो कि आप अपने बारे में एटलीस्ट बता सको ना. अगर आपको पता है तो आप इजिली बता पाओगे. सो अ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट. फन, बातचीत नहीं बच्चे. इधर देखो मेरी तरफ. आई नीड ऑल ऑफ योर पीपल्स अटेंशन अनइंटरप्टेड एंड हियर. कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, कुछ अगर गड़बड़ है तो वो भी बताना, ठीक है? ओके. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है खुद को तो सबसे पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यू टेल योर नेम. You tell your name either by saying I am XYZ
और माई नेम इज दिस सो एंड सो. माई सेल्फ वाला जो है इज अ लिटिल erroneous way to say it, तो माई सेल्फ नहीं बोलना है. माई सेल्फ अनुराग ये गलत है. आई एम अनुराग और माई नेम इज अनुराग. ठीक है. इफ यू वांट टू से फुल नेम आप पूरा नाम भी बोल सकते हैं. उसके बाद जनरली यू टेल कि आप क्या कौन सी क्लास में है, कौन से स्कूल में है, बट क्योंकि आप लोग सभी की क्लास में इट डिडंट मेक सेंस टू आस्क दैट. सो यू स्टार्ट आउट बाय टेलिंग द नेम ऑफ द स्कूल. देन यू टेल योर हॉबीज. हॉबीज आपकी होनी चाहिए कुछ. किसी और ने कुछ बोला है इसलिए नहीं, और कुछ सुनी सुनाई हॉबीज होती हैं वो भी नहीं बोलनी चाहिए. मेक श्योर कि आपकी कोई हॉबीज हों. आप अभी हॉबीज बता नहीं पा रहे इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम एट ऑल. कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अभी अपनी हॉबीज नहीं बता पा रहे, लेकिन अगर आपकी एक्चुअली में कोई हॉबीज नहीं है दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू. मेरे लिए नहीं, आपके लिए प्रॉब्लम है कि अगर आपकी कोई हॉबीज ही नहीं है. हॉबीज समथिंग दैट यू इन योर लेजर टाइम. तो आप पढ़ाई अभी कर रहे हैं, बाकी टाइम आप खेलते हैं, आपके पास जो लेजर टाइम मिला रात को, आपको कुछ टाइम खाली मिला, तो उसमें आप क्या करते हैं ये आपको यू हैव टू फाइंड आउट. एंड आई विल आस्क यू फ्रॉम टाइम टू टाइम आई कीप आस्किंग यू कि आपने क्या हॉबी डेवलप करी अगर अभी नहीं है तो. ठीक है. सो यू स्टार्ट आउट बाय टेलिंग योर हॉबीज एंड देन यू कैन ऐड ऑन अ लिटिल एडिशनल थिंग. अगर आपको कुछ अपने बारे में बोलना पसंद है, आप चाहते हैं कि मैं अपने इंट्रोडक्शन में एक बात ये रखूं कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ traveling around the globe, I have traveled to Nepal, I have traveled to England, I have traveled to London, all that, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं. बट मेक श्योर कि आप जो भी बोलें you have to be confident enough. आप फर्मली बोलें, आपका टोन सीधा होना चाहिए इन अ वे कि वो कन्वे हो. दबी आवाज में ना बोलें क्योंकि उससे दिखता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, तो वो कन्वे ना हो. मेक श्योर कि आपकी आवाज फर्म हो, बिल्कुल कन्वे हो, अच्छे से बुलंद आवाज हो, है ना, तब इट शोज कॉन्फिडेंस. और अगर आपकी आवाज थोड़ी ऐसे हो रही है ना कि सर माय नेम इज एंड आई एम से पता नहीं कुछ है सर, समझ जाओ आप ही बस, तो इट शोज कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, विच इज ऑल्सो फाइन. ये हो सकता है, आई स्टार्टेड ऑफ दैट वे, मेरे साथ भी ऐसा होता था, बट मैं आपको भी बता रहा हूँ ताकि आप इसको करेक्ट कर लो. अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है तो रीच आउट टू मी, आई विल बी ऑफ हेल्प. फाइन. ओके, आई स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट पीस विच इज अ गेम वी जस्ट प्लेड. आई वांटेड टू प्ले अ गेम लेकिन मैं वो एग्जीक्यूट अभी नहीं कर पाऊंगा. Anyway, I'll start off with communication soft skills. ऐसा बोला जाता है बच्चे कि आपकी लाइफ में आपका सक्सेस जो है ना उसका 80% पोर्शन इज एट्रीब्यूटेड टू कम्युनिकेशन. आप किसी भी डिसिप्लिन में हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट में हैं, आप साइंटिस्ट हैं, मे बी आप आगे चल के आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल जो कि अलग अलग जॉनर्स, अलग अलग डिसिप्लिन्स में जाएंगे. कोई साइंटिस्ट होगा, कोई फुटबॉलर होगा, समवन सेड फुटबॉल हियर, है ना, कोई क्रिकेटर होगा, कोई अलग अलग तरह के लोग होंगे. सब अलग अलग जॉनर्स में जाएंगे, अलग अलग प्रोफेशन चूज करेंगे, बट एक चीज सबके लिए कॉमन होगी और सबके लिए काम करेगी, वो है कम्युनिकेशन. इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि आप, अच्छा, हाउ मेनी इफ यू हैव हैड एन एक्सपीरियंस कि आपको लगता है यार मेरे पास आइडिया है बड़ा झाबड़, मतलब बहुत तगड़ा आइडिया है मेरे पास एक, और मैं किसी को बताऊंगा तो वो आइडिया भी कुछ मतलब कुछ फोड़ हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बट जब आपने वो कन्वे करा तो इफेक्टिवली या तो कन्वे नहीं हुआ या सामने वाले को समझ नहीं आया. ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? ओके, पुट डाउन योर हैंड्स. मतलब आप सब लोग रिलेट कर सकते हैं. ये प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन की, या तो आपके बिहाफ से हो सकता है आपने क्लियरली ना बोला हो, आपके दिमाग में वो आइडिया है अच्छे से, लेकिन आप यू कुड नॉट फाइंड द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. आप सही कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स नहीं बना पाए. आपके पास या हो सकता है वो वर्ड ना हो. जैसे आई रिमेंबर बैक इन माई स्कूल डेज, सॉरी, बैक इन माई स्कूल डेज क्या होता था, देयर वाज अ टाइम जब मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, तो देयर वाज दिस वन डे जब मुझको पानी पीना था और मुझे लगा था कि यार पानी मैं मैम को कैसे पूछूं कि मेरे को प्यास लगी है और मुझे पानी पीना है, तो प्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये समझ नहीं आया. और मेरे बराबर में कोई बच्चे जो बैठे थे उनमें से किसी ने बताया नहीं मुझे, कुछ देर तक तो मैंने नहीं पूछा. सो वो जो लैक ऑफ वोकैबुलरी है, एक वर्ड जो मिसिंग था, दैट प्लेज अ बिग गेम. हो सकता है आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता हो कि आपको कुछ एक्सप्रेस करना हो लेकिन आपको उसका अंग्रेजी में या हिंदी में वर्ड ना आता हो. रिमेंबर, लैंग्वेज का एम ये था कि आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकें और उसकी बात समझ सकें, इसलिए लैंग्वेज बनी थी, है ना. लैंग्वेज डज नॉट मीन कि आपकी इंग्लिश अच्छी है या हिंदी अच्छी है, मतलब डज नॉट, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ही ज़रूरी नहीं है कि आपकी लैंग्वेज अच्छी है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है. लैंग्वेज और कम्युनिकेशन या सॉफ्ट स्किल्स आर गुड इफ़ यू आर एबल टू कन्वे, जो आपके मन में, आपके चित्त में है, अगर आप वो अच्छे से कन्वे कर पाएँ किसी को, दैट मीन्स आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है. और अगर आप अच्छे से कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपकी कम्युनिकेशन पे आपको काम करने की जरूरत है, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में. चूज योर सब्जेक्ट, चूज योर लैंग्वेज, इट्स अप टू यू. ठीक है, मूविंग ऑन. ये जो लैंग्वेज या कम्युनिकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस पे काम करने के लिए हम क्या क्या करेंगे,
विल वर्क ऑन योर LSRW स्किल्स. LSRW स्किल्स क्या होते हैं? रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये LSRW स्किल्स है बच्चे. किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को बोलने के लिए ये 4 चीज़ें जरूरी होती हैं. जैसे ये दोनों बच्चे अभी जो कर रहे हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं, लेकिन ये बाकी चीज़ें जो है वो मिस आउट कर रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो उस पर फोकस करें प्लीज़, है ना. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. हाँ, आप चारों में से कोई नहीं कर रहे हैं अभी, है ना. वो कम से कम आपस में तो बात कर रहे हैं. प्लीज़ इधर देखिए प्लीज़, आई नीड योर अटेंशन. ठीक है, तो LSRW स्किल्स पे हम काम करेंगे. यहाँ पे टाइम टू टाइम विल हैव एक्टिविटीज जो कि इन चारों में से किसी एक पे फोकस करें, है ना. देन मूविंग ऑन फ्रॉम देयर विल वर्क ऑन योर ग्रामर ऑल्सो. ग्रामर हम एक्सप्लिसिटली कुछ लेसन्स में पढ़ेंगे और कुछ लेसन्स में इम्प्लिसिटली पढ़ेंगे. दोनों में डिफरेंस को बता सकता है मुझे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट? नहीं, ओके, मैं बताता हूँ. यस सर. I think that explicitly means the topic is just about it. ओके, Implicitly means that the topic is about anything else, but that thing is also included in it. वेरी नाइस. व्हाट्स योर नेम सर? Vedanta. Vedant. Well done, Vedant. Can we clap for him? It's a very good answer actually. Okay. करेक्ट है. इम्प्लिसिट मतलब जब चीज डायरेक्टली ना की जाए, घुमा, जो आप कुछ कर रहे हो उसके बीच में कहीं बिटवीन द लाइंस करी जाए. एक्सप्लिसिट मतलब उसी चीज के बारे में बात हो रही है, उसी चीज पे हम फोकस करेंगे. सपोज एक ग्रामर टॉपिक मुझे एक्सप्लिसिटली कवर करना है, टेंसेस, तो मैं टेंसेस बोर्ड पे लिखूंगा और स्टार्ट करूंगा टेंसेस को समझाना. दैट्स द एक्सप्लिसिट वे ऑफ डूइंग इट. और अगर मुझे इम्प्लिसिटली कराना है तो मैं आपको मे बी कोई रीडिंग एक्सरसाइज दूं, कोई लेसन कराऊं और उसके बीच में बताऊं कि देखो ये वाला जो सेंटेंस है ना बच्चे, ये इस वाले टेंस का है. ठीक है, सो दैट यू गॉट द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट आइडिया. ये जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का डिफरेंस हमने समझा, इसको हम वोकैबुलरी भी समझ सकते हैं. वोकैबुलरी क्या होता है? एक वर्ड बैंक है आपका, और उस पर भी हम काम करेंगे. तो द मोर नंबर ऑफ वर्ड्स यू हैव द बेटर इट विल बी फॉर यू टू एक्सप्रेस. उतनी जल्दी या उतनी ईजिली आप एक्सप्रेस कर पाएंगे चीज़ों को जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स आपके पास होंगे. ठीक है, ऐसा बोला था एक जनरल एवरेज पर्सन के पास अबाउट 300 वर्ड्स होते हैं, 300 वर्ड्स होते हैं टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. आप कभी सोचना इस बारे में. इन इंग्लिश आई एम टॉकिंग अबाउट, हाँ, या हिंदी में भी, किसी भी लैंग्वेज में आपके पास 300 से 400 वर्ड्स होते हैं जिनसे आप अपने बात, अपने आइडिया कन्वे करते हैं. एक एवरेज पर्सन के पास. एक ऐसा पर्सन जिसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है, उसके पास अप्रॉक्सीमेटली 600 to 700 वर्ड्स का वर्ड बैंक होता है. और एक ऐसा पर्सन जो कि शशि थरूर होता है, उसके पास में भी 1000, 1100, 1500 वर्ड्स का वर्ड बैंक हो. जितना ज़्यादा वर्ड बैंक उतना ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट. ओके, पार्डन मी फॉर द इंट्रैक्शन. मूविंग अहेड, ये क्लियर है, इन सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे. यू आर इन 10th ग्रेड, आपने 9th ग्रेड में ऑलरेडी एग्जाम पैटर्न देख लिया. इट्स मोर और लेस सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है. एक आध राइटिंग एक्सरसाइज का डिफरेंस है, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज सेम. यू ऑलरेडी नो दैट रीडिंग मार्क्स 10, रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स का आता है. 2 पैसेज आते हैं फर्स्ट सेक्शन में. देन यू हैव राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर स्किल्स दूसरे सेक्शन में. ग्रामर में डायरेक्टली ग्रामर नहीं पूछी जाती है, एडिटिंग आता है. या तो एडिटिंग इन द सेंस आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा कि करेक्शन बताओ, या फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा. तो 10 क्वेश्चन ग्रामर के आएंगे. अभी मैं 10 FIBs लिख रहा हूँ मैं भी यहाँ पे. और राइटिंग स्किल्स में 1-2 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के ईच. एक लेटर आ सकता है, एक पैराग्राफ आ सकता है, एक स्टोरी आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन दीज आर 3-4 चॉइसेस. प्रीटी सिंपल. एंड नेक्स्ट इज लिटरेचर. लिटरेचर आपका 40 मार्क्स का आता है. उसका क्या ब्रेकअप है ये मैंने आपको डिटेल में इन स्लाइड्स में दिया, यू कैन गो एंड रीड थ्रू इट. क्या क्या टॉपिक्स हैं ग्रामर में ये भी दिया है. ऑल दिस विल बी कवरिंग इन आवर क्लासेस वन बाय वन. बट एक जनरल ओवरव्यू है आपका किस तरह का एग्जाम है, क्या एग्जाम पैटर्न है. रिमेंबर, सॉरी कम अगेन, किस में? नहीं, लिटरेचर में बोल रहे हो आप या किस में बोल रहे हो? हाँ, ओवरऑल गेस, बिल्कुल बिल्कुल वेटेज बराबर होगा लगभग 50-50 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, है ना. एनीवे, मूविंग अहेड, यू ऑलरेडी अवेयर कि लेट मी टेल यू एंड मेंशन दिस एक्सप्लिसिटली कि आपका जो भी सिलेबस है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये थोड़ा कम है. मेरे लिए एक अम्ब्रेला टर्म आई वुड यूज जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका ओवरऑल कम्युनिकेशन एंड इंटर्न योर पर्सनैलिटी, जिसके अंदर ये भी आता है. तो विल वर्क ऑन दिस सिलेबस, विल गो थ्रू दिस सिलेबस, लेकिन विल ऑल्सो डू एक्टिविटीज जिससे आपका ओवरऑल कम्युनिकेशन इंप्रूव हो. रिमेंबर NCERT करिकुलम में भी ये मेंशन है कि आपकी जो ये बुक्स हैं या आपका जो सिलेबस है, इसका इंटेंशन है कि आप रीडिंग सीख पाए टू लर्न द मीनिंग, रीड फॉर मीनिंग एंड टू वर्क ऑन द कम्युनिकेशन. आपको बहुत सारा वर्ड बैंक मिले जिससे आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो. यानी कि लार्जर गोल क्या है? कम्युनिकेशन. सो उसका ध्यान रखिए. आपका स्कूल लाइफ
अभी 10th ग्रेड में आप हैं, व्हेन आई वाज इन 10th ग्रेड मुझे भी लगता था कि बहुत सारी चीज़ें हैं स्कूल में सीखने के लिए मेरे को, और जब मेरा पढ़ने में मन नहीं था तब मुझे लगता था कि कुछ भी नहीं है, मज़े करो, व्हाट इज़ लाइफ अबाउट। बट लेट मी टेल यू कि आपके स्कूल लाइफ में आप कम से कम मिनिमम एक चीज़ का ध्यान रखें। आप बहुत अच्छा है अगर आप सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे से पढ़ें, सब कुछ करें, आप एक्सप्लोर करें ऑप्शंस, इफ़ यू आर अ स्मार्ट किड यू विल प्रॉब्ली बी एबल टू डू दैट। लेकिन अगर आप थोड़ा सा यू आर इन टू स्पोर्ट्स या यू हैव अदर थिंग्स ऑन योर माइंड, आपको लगता है कि यार मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं हूँ तो मुझे कुछ खास देखने की ज़रूरत है नहीं, तो भी ये ध्यान रखिएगा कि आपको कम्युनिकेशन पे ज़रूर काम करना चाहिए अपने, ताकि आप अपनी बात रख पाओ, बोल पाओ आगे, है ना। सो रिमेंबर दैट। मूविंग अहेड, दिस इज द फर्स्ट लेटर, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर लिटरेचर, अ लेटर टू गॉड। इसमें क्या होता है बच्चे, दिस इज अ लेटर, दिस इज द लेसन जिसमें एक पर्सन होता है, लेंचो, फार्मर होता है बाय प्रोफेशन, वो एक लेटर लिखता है भगवान को। हाँ बताओ बताओ, यस यस गो अहेड। हाँ हाँ, समरी नहीं, समरी इन शॉर्ट अभी पूछना है बस, बट ठीक है, गॉट योर। हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो द स्टोरी? आप लोगों से कितने पढ़ ली है स्टोरी? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू, अ लॉट ऑफ यू पीपल। एनीवे पुट डाउन योर हैंड्स। तो ठीक है, आप लोगों में जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनके लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे बीच में, मेक श्योर आप उनमें जरूर पार्टिसिपेट करें। दूसरा, मेक श्योर जिन लोगों ने स्टोरी नहीं पढ़ी आप उनको ओवर पावर ना करें, ऐसा ना हो कि आप उन लोगों को सीखने ना दे रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट। सॉरी, ओके। तो गिव यू लेट मी गिव यू कोई कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। स्टोरी ये है कि इसमें एक फार्मर है, वो फार्मर इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। उसके साथ क्या होता है, उसकी फसल खराब हो जाती है। फसल समझते हैं आप लोग? हार्वेस्ट, जैसे पूरे साल किसान मेहनत करता है, खेती करता है, तो एंड में जो उसको गेहूं मिलने वाला होता है, कॉर्न मिलने वाला होता है, जो भी उसका हार्वेस्ट है, फसल है, वो उसकी मिलने वाली होती है, वो खराब हो जाती है। एंड देन ही राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर सम मनी। ठीक है, सो फॉर ऑल दोस्त जिन्होंने लेसन नहीं पढ़ा उन्हीं के लिए क्वेश्चन है, डू व्हाट डू यू थिंक, डज लेंचोस लेटर रीच गॉड? क्या उसका लेटर भगवान को पहुंचता है? नो सर, एक सब मुझे तो लगता है शायद पहुंचता है। नहीं, नहीं पहुंचता। ओके, ये वाला क्वेश्चन रिमेंबर, मुझे रिमाइंड भी कराना अगर मैं मिस आउट कर जाऊं, लास्ट में डिस्कस करते हैं हम, ठीक है? फॉर ऑल दोस्त जो अभी ना बोल रहे हैं, और मुझे लग रहा है ज्यादातर ना बोल रहे हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट, डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या उसको भगवान पैसे भेजता है? पक्का? अच्छा, ओके, ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो नहीं भेजता होगा, बट चलो, अच्छा ठीक है, चलो, जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग, ठीक है ठीक है। इनडायरेक्टली भेजता है भगवान पैसा? इनडायरेक्टली भगवान भेजता है या कोई और भेजता है? चलो, बड़े ऑब्जेक्टिव सी बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को स्टोरी नहीं पता है वो सोचेंगे क्या बात कर रहे हैं लोग, हमें बता नहीं रहे हैं स्टोरी और खुद बात करे जा रहे हैं। तो चलो पहले स्टोरी देखते हैं एक बारी। वेरी गुड पॉइंट, लेकिन डिस्कस करेंगे चलो इसको भी, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड, एक बारी हम स्टोरी देख लेते हैं फटाफट से। द ऑथर इज जीएल फ्यूएंटेस, ये एक लैटिन अमेरिकन ऑथर हैं, और ये इनके कांटेक्ट में काफ़ी इंडियंस आए जब ये वहाँ पे रहते, तो इसलिए इनका काफ़ी सारा थीम आपको दिखेगा जो कि हमसे काफ़ी रिलेट करेगा, इंडियन जो कल्चर है उससे काफ़ी रिलेट करेगी ये स्टोरी, है ना। तो इनकी जो स्टोरीज़ हैं अगर आगे भी कभी आई तो आपको देखोगे आपकी काफ़ी रिलेट करता है इनसे, हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है, जो कल्चर है, इनकी स्टोरीज़ में दिखता है वो। एनीवे, मूविंग हेड, हम एक स्टोरी रीड करते हैं चलो फटाफट से। तो आई कम टू यू फोक्स देयर एंड देन आई रीड फ्रॉम देयर। मैं आप लोगों की हेल्प चाहूंगा टू अंडरस्टैंड इफ आई एम रीडिंग इट राइट। हाँ, कोई है ऐसा जो मेरे लिए रीड करेगा इसको वहां से प्लीज? यस मैम, फर्स्ट बेंचर, यस। हाँ रीड करो, एंड प्लीज बी लाउड इनफ, जैसा आपको लगता है कि बेस्ट तरीका है रीड करने का वैसे रीड करिएगा, ठीक है? यस। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this highest one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. Okay. The only thing the earth ओके ओके, दैट्स इट मैम, दैट्स इट, थैंक यू। हु एल्स, कौन रीड करेगा? और यस सर, करिए थोड़ा लाउड, हाँ खड़े हो जाइए प्लीज। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. ओके, Throughout the morning, Lenzo, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now he is ओके, दैट्स इट। एनीवन एल्स? यस सर, करिए। Now we are really going to get some
या गो हेड प्लीज. Yes, God willing. The older boys were working in the field, where the smaller ones were playing near the house until the women called them on. ओके, Come for dinner. ठीक है, थैंक यू. देखिए एक चीज़ बच्चे मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ. रीडिंग आप सब लोग ठीक कर रहे हैं, लेकिन कैसे अच्छा रीडिंग होता है, कैसे इंटरेस्ट डेवलप होता है रीडिंग में, वो देखिए. हाँ, रीडिंग में आपको सिर्फ वर्ड्स को नहीं पढ़ना होता है, जो वर्ड जो पंक्चुएशन है उसको भी पढ़ना होता है, वन, और दूसरा इमोशन के साथ पढ़ना होता है ना. आप जैसे बात करते हो एक दूसरे से, क्या ऐसे बात करते हो, हाय अनुराग क्या हाल है तेरे, सामने से बोलता है मैं ठीक हूँ तू ठीक है, ऐसे तो नहीं करते हो ना, ये एक्सप्रेशनलेस कॉन्वर्सेशन. लेकिन आप रीड लगभग ऐसे करते हो, है ना, थोड़ा बहुत कहीं ऐड कर देते हो इमोशन, लेकिन रीड आप ऐसे ही करते हो. रिमेंबर अ वर्ल्ड जिसमें ऐसे बातचीत हो, हाँ मेरे को तो क्रिकेट खेलना आता है, तेरे को आता है नहीं, मैं हिस्ट्री बुक्स पढ़ता हूँ, बिल्कुल मोनोटोन में, है ना, दैट सिंगल टोन. एक वर्ड है इंग्लिश में मोनोटोनस, चलो एक नया वर्ड भी सीख लेते हैं. Oops. ये वर्ड है, ओहो, ये वर्ड है. इस वर्ड को जनरेट, ये वर्ड जनरेट हुआ है इस वर्ड से, मोनोटोन. मोनोटोन का मतलब है एक ही टोन, मोनो मतलब सिंगल, टोन मतलब आपको पता ही है सिंगल टोन. तो मोनोटोन मतलब एक ही टोन, और मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग. ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है बोरिंग. तो मोनोटोनस एक्चुअली जनरेटेड फ्रॉम दिस वर्ड, क्योंकि मोनोटोन जब होता है ना तो बहुत बोरिंग होता है कॉन्वर्जेशन. रिमेंबर, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट फ्लक्चुएशन टोन में, राइट, और वो रीडिंग में भी आना चाहिए. सो मैं कुछ इसको ऐसे रीड करने की कोशिश करूंगा जिससे मेरे को मजा आए इसको पढ़ते हुए, यार मैं एक्चुअली फील कर पाऊँ, देखो लाइवली, है ना. आई विल कम बिटवीन यू एंड देन आई रीड फ्रॉम देयर. द हाउस, यू कैन फोकस देयर ओनली, इट्स ओके. हाँ, आपको सुन ना रहा हो तो मुझे बताना. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. है ना, बात कर रहा हूं मैं, or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरे दिन में उस बंदे ने कुछ ही नहीं किया. क्या करा, बस ऊपर देखता रहा आसमान की तरफ. ये what the writer is trying to say here is he's trying to convey the disappointment, है ना, कि वो यार पूरे दिन उसने कुछ नहीं करा, सिर्फ ये देखता रहा भगवान बारिश कर दो थोड़ी सी, कुछ बन जाए बात अपनी फसल. Maybe desperation, yeah, a point of desperation as well. Disappointment अभी आगे आएगा, correct. Anyway, now we are really going to get some water, woman. मैं तुम अपनी वाइफ से बोलता है, मैं तुमको बता रहा हूँ देखो बारिश होने वाली है. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. भगवान ने चाहा तो हाँ हो जाएगी बारिश. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, come for dinner. आ जाओ खाना. It was during the meal. ये समझ में आ रहा है आप लोगों को सब स्टोरी, वैसे ये समझ में आ रहा है रीडिंग का मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कि क्यों, why it's so important to read with emotions and expressions, है ना, it adds to the overall value, right. ये समझ में आया. यहाँ पे क्या बोला उसने कि मैं चाहता हूँ भगवान बारिश हो जाए. फिर वो अपनी वाइफ से बोलता है कि देख मैं तुझे बता रहा हूँ आज बारिश होने वाली है. उसकी वाइफ कहती है हाँ शायद, मुझे लगता है भगवान ने चाहा तो बारिश हो जाएगी. फिर वो अपने बच्चों को बुलाती है और बोलती है खाना खा लो भाई. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट as Lancho had predicted मतलब जैसे Lancho ने भी बोला था कि बारिश होगी आज, और बारिश हो गई. Big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. मतलब मजा आ गया उसको, जैसी बारिश हुई ना एकदम से स्वीट हो गई है हवा. देख रहे हो आप कैसे चेंज हुआ एकदम से, वो डेस्परेशन जैसे इन्होंने बोला वो धीरे धीरे अब चेंज हो रहा है स्वीटनेस में. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. वो बाहर गया और किसी और कारण से नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं देखता हूँ बारिश गिरती है तो कैसा आनंद आता है. एंड when he returned he exclaimed, और जैसे ही वो वापस आया उसने बोला, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. Exclaim का मतलब एकदम से abruptly बोलना, suddenly बोलना, with surprise, with pleasure. किसी एक्सप्रेशन के साथ एकदम से आप जब कुछ बोलते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेम. ठीक है, तो जैसे ही उसने बारिश, वो इतना एक्साइटेड हो गया, उसने कहा कि देखो बच्चों ये जो गिर रहा है ना ऊपर से, ये बूंदे नहीं है, ये कॉइन्स है. क्यों बोला उसने ऐसा?
एक सेकंड, एनीवन जिसने स्टोरी नहीं पढ़ी है प्लीज ऑनेस्टली वो रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसमें। यस सर, हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं, उसने ये क्यों बोला कि ये बूंदे नहीं है, ये तो न्यू कॉइन्स हैं, ये क्यों बोला? यस सर। करेक्ट बात है। क्यों बोला उसने ऐसा कि भाई रेन ड्रॉप्स आएंगे तो जो हार्वेस्ट है वो अच्छा आएगा, हार्वेस्ट अच्छा आएगा तो वो उसको बेच पाएगा और उससे उसके घर में खाना आएगा, है ना, खाना आएगा, पैसा आएगा। एंड दैट्स व्हाई इसने बोला ये तुमको बारिश लग रही होगी लेकिन ये एक्चुअली में कॉइन्स हैं। दीज बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5s। ये जो बड़ी बड़ी बूंदे गिर रही हैं 10 cent के पीसेस है या बड़े सिक्के हैं, और ये छोटी छोटी बूंदे हैं छोटे वाले सिक्के हैं। क्लियर है इतनी बात? पक्का? ओके। आई इंटेंड टू रीड दिस एंटायर लेसन टू यू, लेकिन अभी मैंने जो किया वो आपको एक फील देने के लिए किया। नेक्स्ट टाइम आई वुड वांट या आस्क यू टू रीड, आप प्लीज ये इनकॉर्पोरेट करिएगा अपने अंदर, ठीक है? पक्का? आपने नोटिस किया कि मैंने एक्सक्लेमेशन वाला पोर्शन अलग से बड़ा, जहां पे पॉजेज है मैंने बड़े अच्छे से पॉजेज दिए, एंड आई रेड विद एक्सप्रेशन। अगर किसी विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद द फ्लावर्स। रिगार्डेड का मतलब पता क्या होता है? रिगार्डेड का मतलब होता है ऐसे देखना, केयरफुली, ध्यान से देखना। इस कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली रिगार्ड का और भी मतलब होते हैं, बट उसने बोला जैसी बूंदे गिरने लगी ना तो उस बंदे ने बड़े ध्यान से, मतलब बड़े अच्छे से एक केयरफुल लुक, जैसे आप कोई काम बहुत टाइम से चाहते हैं कि हो जाए और वो हो जाता है। आप चाहते हैं एक वीडियो गेम है, मेरे वाला जो यहाँ पे गेमर है वो, यार वो वीडियो गेम नहीं मिल रहा है कहीं सीडी उसकी, वो मुझे आज मिल जाए, और वो आज मिल गई सालों के बाद। तो जो लुक आएगी ना आपको सीडी को पकड़ के ऐसे कि आहा बस आज जाके खेलूंगा गेम, ये वो जो इमोशन होता है सेटिस्फैक्शन का, उस सेटिस्फैक्शन वाले इमोशन से ये बंदा फील्ड देख रहा था अपना कि यार अब तो मजा आएगा, अब कौन आएगा। क्या देख रहा था? द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। बारिश से हल्का हल्का उसके ऊपर ड्रेप समझते हो, कवर हो गया था वो बारिश से हल्का हल्का फील्ड उसका। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म्स बिगैन टू फॉल। लेकिन क्या होता है पता है? खुशी ना ज्यादा देर तक टिकती नहीं, मतलब इट डजंट स्टे फॉर लॉन्ग। व्हाट हैपेंस रियली इज, जैसे वो इतना खुश था, वो ऑलमोस्ट कंटेंटेड था, एकदम से ऊपर से बारिश के साथ साथ ये मोटे मोटे ओले गिरने लगे। हेलस्टॉर्म्स मतलब ओले, बारिश के साथ साथ ये मोटे ओले गिरने लगे। और जैसे ही ये हुआ, but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां पे राइटर ने, अभी उसने बोला था ना ऊपर कि ये जो बूंदे गिर रही हैं पैसा है, ये कॉइन्स हैं, है ना, और यहां पे राइटर ने बोला कि ये जो गिर रहा है ना ओले, ये हेलस्टोन्स जो गिर रहे हैं, ये एक्चुअली में रिजेंबल करते हैं कॉइन्स से। क्यों बोला उसने ऐसा? यस सर। हाँ, करेक्ट, लेकिन ये कंपैरिजन क्यों ड्रॉ आउट करना चाहा उसने, ये पॉइंट है। यस सर। करेक्ट, वो क्लियर है कि हेलस्टोन सिल्वर कॉइन की तरह दिखते हैं, लेकिन उसने पता है राइटर ने यहाँ बोला क्यों, वो इसलिए बोला कि अभी थोड़ी देर पहले वो बड़ा खुश हो रहा था इस बात को देख के कि तुमको पता है ये जो बूंदे गिर रही हैं कॉइन्स के बराबर हैं। अब जब वो गिरने लगे ना हेलस्टोन्स, और वो चाहता है कि ये ना गिरें, अभी आप देखोगे कि उसको लगेगा कि यार ये हेलस्टोन्स ने पूरी फसल खराब कर दी मेरी, वो चाहता है कि ना गिरें। तो राइटर ने ना यहाँ पे एक सरकास्टिक या एक कंपैरिजन ड्रॉ आउट करने की कोशिश करी कि जिस बात पे भी थोड़ी देर पहले वो खुश हो रहा था ना, अब वो चीज डिसअपॉइंटिंग है। एक्चुअली में जो सिल्वर कॉइन से रिजेंबल करती है ना चीज, हेलस्टोन्स, वो चाहिए नहीं हमको, बारिश चाहिए हमको, है ना। सो ही ट्राई टू मेक दिस कंपैरिजन जस्ट फॉर द इफेक्ट, फिगरेटिव इफेक्ट समझते हैं लैंग्वेज में, एम्फसाइज के लिए, या अच्छा सा दिखे कुछ, लैंग्वेज अच्छा सुनने में लगे, उस एम्फसिस के लिए कई बार फिगरेटिव लैंग्वेज यूज की जाती है। आप बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखेंगे, आई विल पॉइंट आउट द एग्जांपल्स एज वेल। ठीक है, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। कुछ बच्चे जो खेल रहे थे, उसके दोनों किसान के बच्चे, वो दोनों भाग के वो जो हेलस्टोन्स थे उनको कलेक्ट करने के लिए गए टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। ये क्या है बच्चे, आपको मुझे बताएगा? इसमें एक लैंग्वेज का टूल यूज हुआ है, फिगरेटिव लैंग्वेज का, स्पेशली इस पार्ट में, हाँ क्या यूज हुआ है बताइए, कैसे? यस,
तो कंपैरिजन को मेटाफर ही बोलते हैं या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, क्यों? हाँ हाँ बोलिए। ठीक है, गुड ट्राई, मैं समझ गया आपका इंटेंशन। ओके, आई क्विकली टेल यू, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी चलना है, इसलिए सुनिए। ही सेज टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। दो तरह के कंपैरिजन यूज होते हैं। पहला कंपैरिजन होता है सिमिली, जिसमें एक चीज को कंपेयर किया जाता है दूसरी से यूजिंग वर्ड्स लाइक एज और लाइक। जैसे मैं बोलूं वो इतना तेज दौड़ता है, इतना तेज जितना कि एक चीता दौड़ता है। ही रन्स एज फास्ट एज अ चीता, ही रन्स लाइक अ चीता। तो ये सिमिली हुआ। यहाँ पे दो चीजों को कंपेयर कर रहा है विद कंपैरिजन वर्ड्स लाइक एज और लाइक। दूसरा कंपैरिजन होता है जहां पे एक चीज को दूसरी चीज ही बोल दिया जाता है। जैसे मैं बोलूं ही इज अ चीता, इतनी तेज दौड़ता है कि चीता ये। तो वो जो इफेक्ट है लैंग्वेज इफेक्ट, उसको हम मेटाफर बोलते हैं। क्लियर है? सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट कहीं भी पूछूं तो आपको बताना है कि सिमिली है कि मेटाफर है कि कुछ और है। कुछ और है तो आप बता देना, फिर मैं फिर से समझा दूंगा। बट इतनी बात क्लियर है? पक्का? आई नीड ऑल ऑफ यू। हाँ, थोड़ा एनर्जी दिखाओ। ओके, नेक्स्ट। ओके, आई एम ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम, तो मुझे अब क्विकली समरी देने पड़ेगा आपको। बट अभी तक मेरा इंटेंशन ये था कि आपको रीडिंग का एक आइडिया लगे। एनीवे, मूविंग अहेड, तो जैसे ही क्या होता है, अब ओले गिरने लगे। अब देखते देखते आप ये नोटिस करेंगे कि उसकी फसल पूरी खराब हो जाती है। एंड ही सो डिसअपॉइंटेड, उसका ही ऑलमोस्ट हैज अ वेरी डिसअपॉइंटेड लुक। जो ये देख रहे हैं आप, ये वाला लुक उसका होता है। वो देखता है अपनी नजरों के सामने, अपनी नजरों के सामने ही सीज फॉर एन आवर the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield and the whole valley. पूरी वैली के ऊपर इतनी तेज बारिश होती है और वो लगभग घंटे भर तक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरा फसल या पूरा हार्वेस्ट स्पॉइल हो जाता है। हार्वेस्ट स्पॉइल हो गया, और इतना स्पॉइल हो गया, कितना स्पॉइल हो गया, उसको एक्सप्रेशन को कन्वे करने के लिए वो एक एग्जाम्पल देता है। एग्जाम्पल देता है ये, अ प्लाग, अपने बच्चों से बोलता है प्लेग ऑफ लोकस्ट्स। लोकस्ट होता है ये इंसेक्ट। ये इंसेक्ट इतना हार्मफुल होता है क्रॉप्स के लिए कि अगर इनका ग्रुप इंसेक्ट का एक फार्म में आ जाए तो ऑलमोस्ट खत्म कर देते हैं फसल को। तो वो ये बोलता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, अ प्लेग ऑफ इंसेक्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। इससे ज्यादा छोड़ा होता शायद एक प्लेग ऑफ लोकस्ट ने। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। हेल जो है ना, ये अभी जो ओलावृष्टि हुई है, जो ओले गिरे हैं, ये इनके बाद कुछ नहीं बचा है। दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न। इस साल ना कुछ नहीं होगा हमारे पास। इमेजिन अ सिचुएशन, अभी हम लोग के पास बड़ी विलासिता है, वी हैव ऑल द एम्यूनिटीज। हम लोग जाते हैं आराम से एसी में लेटते हैं, गर्मी लगी तो एसी चला दिया, ठंड लगी तो हीटर चला दिया। वी हैव ऑल द एम्यूनिटीज। इमेजिन अ सिचुएशन अब से 100 साल पहले, 200 साल पहले, अगर आप उसमें होते तो जहाँ पे आपको कुछ खाना है तो पहले आपको खेत में मेहनत करनी पड़ेगी, खुद उसको फसल को उगाना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, बीज डालना पड़ेगा। फिर साल भर बाद जब आपको वो मिलने वाला होगा फसल, तब सोचो बारिश पड़ जाए या ओला पड़ जाए और आपकी आंखों के सामने पूरी फसल खत्म हो जाए। आज खाना नहीं मिलेगा, ये आपके दिमाग में आएगा, और फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आज नहीं, सिर्फ पूरे साल ही खाना नहीं होगा, भूखे सोना पड़ेगा रोज। ये सिचुएशन थी इस टाइम, एंड दैट्स व्हाई दिस लुक। इमेजिन, ट्राई टू इमेजिन द सिचुएशन, क्योंकि लिटरेचर आपको यही तो सिखाता है। लिटरेचर आपको वैरायटी ऑफ इमोशंस से लेके जाएगा, स्टोरीज ऐसी बताई जाएंगी आपको, इसमें बहुत सारे इमोशंस आपको देखने को मिलेंगे। उनको फील करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको उनसे सीखने को मिले कुछ। Anyway, coming back to it, I'm not going to discuss these questions क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, but I would want to discuss the summary at the end. ठीक है? इतना क्लियर है कि अभी तक क्या हुआ बच्चे? उसकी फसल डिस्ट्रॉय होगी। अब क्या हुआ, उसको एक आइडिया आता है, वो बहुत डिसअपॉइंटेड था, अपनी फैमिली से भी डिस्कस कर रहा था, लेकिन उसको रात में एक चीज आती है ध्यान, कि इफ देयर इज नथिंग, तो भगवान तो है ही। मुझे भरोसा है भगवान पे, और भगवान सबका हैंडल करता है, सो गॉड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इस चीज का ही भगवान ध्यान करेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं लेटर लिखता हूं एक, और लेटर में आई मेंशन भगवान से कि भगवान मेरी ना फसल खराब हो गई है, जिसकी वजह से मेरे को 100 पीसोस का नुकसान हुआ है। 100 पीसोस, ये एक्चुअली एक लैटिन अमेरिकन स्टोरी है, मैंने आपको बताया जो राइटर वो लैटिन अमेरिकन है। तो पीसोस इज द करेंसी इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, तो इसलिए उन्होंने पीसोस का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, इफ यू वांटेड टू ऐड समथिंग। बट द थिंग इज कि पीसोस वहाँ की करेंसी है, तो उसने बोला कि 100 पीसोस का नुकसान हुआ है, तो मैं 100 पीसोस मांगता हूँ भगवान से, लेटर लिखता हूँ उन्हें। उसके दिमाग में आइडिया, और कल लेटर जाके पोस्ट कर दूंगा पोस्ट ऑफिस, बिना देरी के। पैसा चाहिए अपने को तुरंत। ठीक है, आपको इस चीज में कुछ अटपटा नहीं लगा? मुझे तो बहुत लगा जमाने में कि यार एक बंदा सोच रहा है। हाँ, यस सर। ठीक है, आएंगे इस पे वापस।
अल्टीमेट आएंगे, वापस आएंगे, ठीक है। एनीवे सो आगे बढ़ते हैं। उसने लेटर लिखने का सोचा और वो गया, अगले दिन लेटर लिखा उसने, भगवान को बोला कि भगवान मेरा 100 पीसेस का नुकसान हुआ है, मुझे 100 पीसेस चाहिए अभी और आप उनको भेजिए। लेटर लिखा, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दिया। वो लेटर लगा एक पोस्टमैन के हाथ। उस पोस्टमैन ने जब उस लेटर को देखा तो पहले तो बहुत तेज हंसा कि कौन गधा है यार, भगवान को लेटर लिख रहा है। एड्रेस था टू गॉड, भगवान को लेटर भेज देना मेरा ये। उसने लेटर खोल के देखा तो उसमें पैसे मांगे हुए उसने। तो पोस्टमैन बड़ा पहले तो बहुत हंसा और फिर हैरत में आके उसने सोचा कि चलो पोस्ट मास्टर साहब को दिखाते हैं। वो भागा अपने पोस्ट मास्टर साहब के पास गया और पोस्ट मास्टर साहब को दिखाया लेटर। वो तो पोस्ट मास्टर का इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो क्या था। ही वॉज अ फैट एमिएबल फेलो। पोस्ट मास्टर जो थे एक चबी इंसान थे, थोड़ा सा बल्कि थे, और एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली इजी गोइंग इंसान थे, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर साहब ने जब उसको देखा लेटर को तो वो भी बड़ी जोर से हंसे, कमाल है यार ये बंदा। लेकिन ये उनका पहला रिएक्शन था। उनका दूसरा रिएक्शन कुछ ही सेकंड्स बाद ये था कि यार क्या फेथ है इस बंदे का, व्हाट फेथ, मतलब इसका भगवान में कैसा भरोसा है। ये भगवान को लेटर लिख रहा है, ही इज कॉरस्पॉन्डिंग विद गॉड। लिखा भी उन्होंने, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ दैट मैन हु रोट दिस लेटर। आई एम मिसिंग आउट समथिंग हियर। एनीवे, व्हाट अ थिंग टू डू कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, मतलब भगवान, कॉरस्पॉन्डेंस मतलब लेटर लिख के बातचीत करना किसी से, टू सेंड लेटर, रिसीव लेटर्स फ्रॉम समवन, इसको कॉरस्पॉन्डेंस बोलते हैं। कि इतना फेथ है किसी का, इतना बिलीफ है, इतना भरोसा है उसका किसी चीज में कि वो भगवान को लेटर लिख रहा है। क्या फेथ है, मतलब यही। वो बड़े आश्चर्य में आया और मैं भी आया जब मैंने पहली बार ये स्टोरी पढ़ी कि यार ऐसा भी हो सकता है, किसी को इतना भरोसा हो भगवान पे और कोई इतना भोला भी हो कि एज्यूम कर ले कि भगवान तक लेटर पहुंच जाएगा और आ भी जाएगा। दिस वाज द सेकंड थिंग आई वाज ट्राइंग टू पॉइंट आउट। एनीवे, मूविंग अहेड। तो क्या करा साहब ने, लेटर लिखा, पोस्ट कर दिया। पोस्ट मास्टर साहब ने पढ़ा तो पोस्ट मास्टर साहब ने सोचा यार क्या भरोसा करता है ये बंदा। और इसी बीच उनको लगा कि यार इतना भरोसा करता है तो चलो इसका भरोसा टूटने नहीं देते। हम क्या करते हैं, इसके लिए कुछ विल डू समथिंग, और एक रेजोल्यूशन लेता है टू हेल्प हिम। पोस्ट मास्टर टेक्स अ रेजोल्यूशन। वो एक रेजोल्यूशन लेता है। रेजोल्यूशन समझते हैं ना, जो आप लोग न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लेते हैं, वो वाला कुछ करने की सोचते हैं। तो वो रेजोल्यूशन लेता है कि इसकी मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं, तो ही आस्क्स हिज एम्प्लॉइज, कुछ अपनी सैलरी का हिस्सा और अपने फ्रेंड्स को बोलता है आप क्या कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं सर, आप ही बता दो, आपने नया वर्ड का सीखा, आपने शुरू ही कर दिया उसको अप्लाई करना। अच्छा सुनो, तो वो लेटर देता है, अच्छा ठीक है। तो वो ही व्हाट ही डिसाइड्स इज कि इसकी हेल्प करने है, वो पैसा इकट्ठा करता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि सारा पैसा जोड़ने सब लोगों से मांगने के बाद भी ही कुड ओनली कम एट 70 पीसोस, ही कुड ओनली गैदर 70 पीसोस। तो वो क्या करता है, वो 70 पीसोस जो उसको मिले वो एक एनवेलप में डालता है, साथ में एक लेटर डालता है जिस पे लिखा होता है सिर्फ गॉड लिखा होता है उस पर, और कुछ नहीं लिखा होता। एंड ही सेंड्स इट, और वो उसको भेज देता है वापस किसके पास, लेंचो के पास। तो नेक्स्ट मॉर्निंग लेंचो अपडेट लेने आता है पोस्टमैन से कि साहब मेरा कुछ जवाब आया, मैंने कल लेटर लिखा था भगवान को, कुछ आया उनकी तरफ से जवाब, आ जाना चाहिए था अभी तक, भगवान को कर देना चाहिए जवाब। यस सर। ठीक है, इन शॉर्ट मतलब बेसिकली द समरी इज कि वो लेटर का अपडेट लेने के लिए आया है ना। तो वो लेटर का अपडेट लेने के लिए आया, तो पोस्टमैन ने उससे पूछा कि सर पोस्टमैन ने उसको लेटर हैंड ओवर किया, और जब वो लेटर हैंड ओवर करा तो पोस्ट मास्टर उसके पीछे ही खड़ा था टू सी कि क्या रिस्पॉन्स होगा लेंचो का, क्योंकि पोस्ट मास्टर को बड़ा अच्छा लग रहा था ये करके जो उसने किया अभी, यार मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, मैंने एक इंसान की जिसका भगवान में अटूट विश्वास था उसकी हेल्प कर दी है, तो देखता हूँ उसका क्या रिस्पॉन्स होता है। तो वो लुक ऑफ कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, वो लुक ऑफ कंटेंटमेंट उसके फेस पे था, और ही वांटेड टू सी कि लेंचो का क्या रिस्पॉन्स होगा। लेंचो ने लेटर लिया, खुला, उसने पैसे निकाले, उस पर गॉड लिखा था जो उसने पढ़ा, और पैसे निकाले, गिने, तो उसके चेहरे पे कोई भी आश्चर्य नहीं था। ही वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज नहीं हुआ इस बात से कि यार भगवान से जवाब आ गया और पैसे भी आ गए, उसको कोई इसका सरप्राइज नहीं था। उसको इनफैक्ट गुस्सा था, किस बात का, कि 100 मांगे थे 70 भेजे यार, भगवान क्या गड़बड़ है तुम्हारे हिसाब में। लेकिन ही हैड एन अनमूविंग फेथ, उसका भरोसा भी था भगवान में, तो उसको ये तो श्योर था कि भगवान ना तो गलती कर सकता है, कहने का मतलब भगवान ने 100 ही भेजे होंगे,
गलती नहीं कर सकता भगवान पैसे गिनने में। और उसको ये भी था कि ना जो मैंने मांगा है भगवान को वो भी डिनाई नहीं करेगा भगवान। मतलब मैंने भगवान से बोला था कि 100 रुपये भेजने, तो वो 100 ही भेजेगा, वो 70 क्यों भेजेगा? तो ना वो गलती कर सकता है और ना वो मेरी रिक्वेस्ट को डिनाई करेगा। तो कुल मिला के 100 जो 70 आए ना, इसमें कुछ गड़बड़ है। तो उसने क्या करा, गुस्सा जताते हुए उसने एक और लेटर लिखने की सोची कि यार एक और लेटर लिखता हूँ। उसने एक और लेटर लिखा और लिखा कि भगवान मेरे जो आपने पैसे भेजे थे ना उनमें 30 कम है, वो 30 भी आप मुझे भेज दो, लेकिन ध्यान रहे एक बात का कि वो जो 30 आप भेजोगे ना वो डायरेक्टली मेरे पास भेजना। ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ना, कुछ ये बदमाश हैं बड़े। ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रुक्स। क्रुक्स मतलब एनीवन, अ गैंगस्टर और अ चीटर, बेसिकली एन इल इंटेंडेड पर्सन। ठीक है, तो ये क्रुक्स हैं, ये बदमाश हैं लोग, इनके हाथों मत भेजना। वो कुछ भी करो आप, डायरेक्टली मेरे तक कॉरेस्पॉन्ड करो, बट मुझ तक वो पैसे भेज दो, 30 रुपए। क्लियर है ये बात? एंड दिस इज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। तो यहां से आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू। या फर्स्ट इज, हैव यू एवर बीन in a great difficulty and felt that only a miracle could help you? How was your problem solved? Speak about this in the class with your teacher. Okay. So आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में रहे हो, जैसे लैंचो था, और आपकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई हो लगभग एक मिरेकल से? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कभी नहीं हुआ? यार ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो पक्का हुआ होगा। यस सर, नहीं हुआ? नहीं हुआ कभी? ऐसा किसी के साथ हुआ ही नहीं है आप लोगों के साथ? मिरेकल नहीं, मतलब कुछ तो ऐसा लगा कि यार आज तो बस किसी तरह कुछ हो जाए, आज नहीं लगता मुझे कुछ होगा, आज तो खत्म होने वाला है सब, और वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई हो। यस सर, या बताइए, कोई हाथ उठा रहा है? नहीं, ठीक है, नो वरीज। इसका आप आंसर सोचिएगा बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस। यस oh, managed. अच्छा, ठीक है, फेयर इनफ, है ना। एक प्रॉब्लम थी जो कि रिजॉल्व हुई, लगा था आज तो घर ही नहीं पहुंच पाएंगे भाई, 2 हो चुके हैं पंचर, या 4 टायर पंचर होने हैं आज, है ना। इट फेल्ट लाइक दैट। एनीवे, चलो मूव नेक्स्ट। मैसेज ऑफ दिस टेल, क्या हमें इस स्टोरी से क्या मैसेज मिलता है ये बताइए बच्चे। कुछ मैसेज है स्टोरी में? मैं आपको हिंट देता हूं। फर्स्ट इज, एक गेट प्लीज आप पास बंद कर देंगे बच्चे, हाथ मार दो इस पे, ठीक है। सो मैसेजेस, पहला, इसमें जो लैंचो है वो एक कैरेक्टर है दैट सिग्निफाइज फेथ, जैसे यहाँ पे किसने बताया भी था, फेथ या अनवेवरिंग ट्रस्ट, किसी चीज में अनवेवरिंग ट्रस्ट होना, उसको बोलते हैं फेथ। तो वो जो फेथ था उसके लिए स्टैंड्स लैंचो। कैसा फेथ था कि उसने भगवान को लेटर लिख दिया, और कमाल की बात यह है कि चाहे जिसके थ्रू आया हो उसके पास जवाब भी आया, और उसने जो मांगा था वो भी उसको मिला, थोड़ा कम मिला लेकिन आ गया उसके पास, है ना। सो द फर्स्ट पर्सन और द फर्स्ट थिंग इज दैट फेथ। इसलिए इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे सीखने को मिलता है कि अगर आप किसी चीज़ पे आपकी इच्छा है या किसी चीज़ में आप चाहते हो कुछ करना, तो हैव एन अनवेवरिंग फेथ। ऐसा फेथ आप रखो, ट्रस्ट रखो कि यार ये करना है मुझे, या ये मैं करके रहूँगा, जो भी रास्ता बनेगा, वट एवर बी द वे, वो काम पूरा हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये इट हैपन्स, इट एक्चुअली हैपन्स। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट फर्स्ट हैंड, मैंने एक्सपीरियंस किया है इसको, एंड आई बिलीव आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड, कहीं ना कहीं इसको एक्सपीरियंस किया होगा। नेक्स्ट इसमें आता है पोस्ट मास्टर साहब। तो जो पोस्ट मास्टर हैं या जो एम्प्लॉयज हैं पोस्ट ऑफिस के, दे स्टैंड फॉर, वो किस चीज को सिग्निफाई करते हैं? ह्यूमैनिटी को या मैनकाइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, या हेल्प को सिग्निफाई करते हैं। ऑप्टिमिज्म तो उसको लैंचो है, ऑप्टिमिज्म मतलब अच्छा, होप फॉर समथिंग गुड। तो वो सिग्निफाई करते हैं किसको? मैनकाइंड को। क्यों? व्हाई? यस सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उन्होंने ये सोचा यार इस बंदे का इतना फेथ है भगवान पे, ये इसकी फसल भी खराब हो गई है, इसकी पूरे साल को इसको खाने को नहीं मिलेगा कुछ, और इसने लेटर, इतनी उम्मीद में भगवान को लेटर लिखा है, तो चलो इसका भरोसा रखते हैं। उनको कुछ नहीं मिलने वाला था उससे, वो इनफैक्ट पता भी नहीं आता अब चला लैंचो को कि किसने हेल्प करी है,
लेकिन स्टिल दे गैदर्ड, उन्होंने अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट किया, किसी तरह पैसे पूरे किए, 70 रुपये 100 पूरे भी नहीं हो पाए और मदद कर दी. इधर देखो प्लीज, लास्ट 5 मिनट्स बस. उन्होंने हेल्प कर दी, हेल्प पहुंचा भी दी. द फैक्ट रिमेंबर कि वो एक्नॉलेज भी नहीं हुआ. उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया, जो उन्होंने हेल्प करी, अच्छा इंटेंशन रखा, वो किसी ने एक्नॉलेज तक नहीं किया. थैंक यू भी नहीं बोला लंचो ने कि भगवान थैंक यू 70 तो भेज दिए तुमने. लंचो ने कहा 30 रुपये दो, पहले मेरे बचे हुए, है ना. तो वो एक्नॉलेज भी नहीं हुआ. एंड दैट ऑल्सो हैपन्स. वो भी अक्सर होता है कि आप किसी की हेल्प करने जाओ, इट डजेंट गेट एक्नॉलेज्ड. स्टिल द लार्जर मैसेजेस कि आपको एज लॉन्ग एज आप कैन एक्सटेंड हैंड ऑफ हेल्प टू एनीवन, आप करो. आप जो भी कर रहे हो करते रहो, लेकिन साथ साथ एक हेल्प का हैंड भी एक्सटेंड करो लोगों को. वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट्स ऑल वी कैन डू. क्योंकि अभी बड़ी डिफिकल्ट टाइम्स रहे हैं, पैंडमिक रहा है ओवर इन द लास्ट couple of 3-4 years. आपने देखा होगा कि पैंडमिक का टाइम रहा है, एंड इट हैज़ बीन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. इस टाइम में अगर आप एक थोड़ा सा हेल्पफुल एटीट्यूड डेवलप कर लें तो बहुत अच्छा होगा. रिमेंबर, ये स्टोरी का एंड नहीं है, ये CBSE NCERT करिकुलम के स्टोरी का एंड है. जस्ट टू गिव यू अ लिटिल एड ऑन टू इट, जो कि आप बुक्स में नहीं लिखेंगे. वो ये कि ये जो स्टोरी एंड होती है वो इस बात पे एंड होती है कि स्टोरी मतलब लांचो ने तो बोल ही दिया है कि मुझे 30 पीसेस और भेजो. What happens really is the employees, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे फिर से इकट्ठा करके जोर लगा के 30 पैसे 30 पीसेस और इकट्ठा करते हैं, एंड देन दे सेंड द मनी टू लंचो. द मैसेज इज क्लियर कि चाहे आपका एफर्ट एक्नॉलेज हो या ना हो, आपको अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो वो करते रहना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द होप, इरेस्पेक्टिव ऑफ द इच्छा कि एक्नॉलेज होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यार मेरे को इसकी बड़ाई मिलेगी, मेरे को करना ये काम इसलिए नहीं, बट अगर आपको कोई काम लगता है कि अच्छा है, इसको करना चाहिए, तो आपको कर देना चाहिए. क्लियर है? मैसेज क्लियर है? ओके फाइन. समरी पॉइंट्स हैं बच्चे इसमें, एंड देन यू हैव सम क्वेश्चंस. आपका होमवर्क ये है कि आपको सबसे पहले तो इसका एक डिटेल्ड समरी देना है. ये इन शॉर्ट सारे पॉइंट्स हैं इसमें जो हमने भी डिस्कस किए. आपको इसका एक डिटेल्ड समरी लेके आना है 1, एंड देन वी हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के, जो कि आपको अपने हिसाब से डिस्कस करने हैं, एंड देन एज अ DPP एज वेल, जो कि आपको रिजॉल्व करना है. ठीक है? ये पूरा स्टोरी यू हैव टू रीड थ्रू. एक बार ही पूरा स्टोरी रीड करिएगा. व्हाट आई हैव डन फॉर यू इज, मैंने आपके लिए हर एक क्वेश्चन जो डिफिकल्ट वर्ड है, जो NCERT से अलग है, NCERT में दिया हुआ है पूरा लेसन और इजीली समझ भी आता है, बट अगर आपको फिर भी कहीं डिफिकल्टी आएगी तो इसके थ्रू नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सारे डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने यहाँ पे साइड में ग्लॉसरी में डाल दिए हैं. तो यू कैन रीड थ्रू इट एंड रीड इट एंड देन रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस. क्लियर है? पक्का? ओके, ऑल राइट देन. थैंक्स अ लॉट. इट वाज अ नाइस क्लास विद यू. लेट्स मीट अगेन सून. मुझे कुछ स्लाइड्स डिलीट करनी है.